Hello, myself Prabhakar Pramod Jha, a practicing registered valuer, a practicing social auditor, and IBC law consultant. मैं प्रभाकर प्रमोद झा एक प्रैक्टिसिंग रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एक प्रैक्टिसिंग सोशल ऑडिटर एंड IBC लॉ कंसल्टेंट. टुडे we are going to cover the important topics of NISM study material फॉर सोशल ऑडिटर एग्जाम प्रिपरेशन. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल ऑडिटर के एग्जाम प्रिपरेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ये 2 घंटे का वीडियो होगा. इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे, एक एक घंटे के, और मैक्सिमम 2 आवर्स के होंगे. दिस टॉपिक आई विल कवर फॉर 2 आवर्स. इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स in 2 videos, and this will cover around 40 marks. ये अगर वीडियो आप अटेंड कर लेते हैं तो आपका समझ लीजिए कि 40 मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे. इसमें मैंने जो सिलेबस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको कवर किया है. ये 2 घंटे के वीडियोस में ये आपको 2 पार्ट्स में मिलने वाले हैं. So now, without wasting much time, I'm starting. I will convey this message in both the language. I will cover this topic in both the language, English and Hindi. First of all, I will explain in English, then I will also explain in Hindi. So we are talking about social auditor exam preparations. आज हम लोग बात कर रहे हैं सोशल ऑडिटर के एग्जाम प्रिपरेशंस में. कुछ हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे. What is the passing mark? Basic things also we are going to discuss. What is the strategy to pass? How we can easily score the marks? All of you are aware that this examination is conducted by NISM. So, out of total 100 questions, there are 85 question of 1 mark. 85 question of 1 mark. यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से 85 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के. यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे. किसी किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन भी मिलेगा. यू विल गेट 4 ऑप्शंस, एंड इन फ्यू क्वेश्चन यू विल गेट द 2 ऑप्शंस ऑल्सो. Just a second, I am making a zoom of this. This will be more readable now. So 85 question of 1 mark each, and 3 case study. 3 case studies of 15 marks. And these case studies are further divided into each case study having a 5 questions of 1 mark each. Again, these case studies are not based on numerical questions. ये केस स्टडी भी जो है ना, ये भी एक एक मार्क के ही क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी बेस्ड. यहाँ पे आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस एग्जाम में. आपने जो थ्योरी की स्टडीज की है उसी के कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको ये केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. मोस्ट पर्टिकुलरली अगर आप चैप्टर 6 एंड 7 को रीड करते हैं तो उसी को अगर रीड करने से आपका ये भी प्रिपरेशन हो जाता है. सो इफ यू रीड द चैप्टर 6 एंड 7 ऑफ थ्योरी, then this will cover the case study based questions. So will be no numerical question will be asked in this exam. And right now this exam is very easy to pass. So total 100 questions. Out of this, 85 marks, 1 mark MCQ based on theory. Again, 15 marks
case based. This is application of theory knowledge. So we can say that case based. Here you have to apply your theory knowledge, what you have studied in these chapters, and that you have to apply. Out of this, you have to score, total you have to score 60 marks. आपको टोटल 100 क्वेश्चंस है, उसमें से 85 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के आपके जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उससे रिलेटेड केस स्टडीज यहाँ पे आएंगे, और आपको दोनों मिला के 60 मार्क्स लाना है पासिंग। 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान में रखना है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 marks will be deducted. Suppose you have attended a 85 questions. How much question attended? 85. Out of that, suppose you have, your correct answer is, let's say 65, and your wrong answer is 20. So in that event, you got 1 mark each questions. So you got 65 marks, and 20 wrong answer. For each wrong, there is a 0.25. So that means for every 4 questions, 1 mark will be deducted. So for total 20 questions, 5 marks will be deducted. So in that event also you are passed 60. So you have to attend very carefully. If you are knowing the answer, then only you should attempt. Otherwise, please ignore the questions. Now the very important question, how much question you should attend it. कितना क्वेश्चन आपको अटेंड करना चाहिए। तो अगर 100 के 100 क्वेश्चन आप अटेंड करते हो, यहाँ पे आपको कोई रिवॉर्ड तो नहीं मिलने वाला है। You will not get any reward. You just need to pass this exam. So passing requirement is minimum 60. So it's better you should attend the question around 82 to 86 marks, max to max. Again, it is my opinion. Again, if you are knowing the answers all, you can attend. अगर आपको क्वेश्चन सारे के सारे आते हैं, आप अटेंड कर सकते हो। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं किसी को ना तो मैं यहाँ पे एडवाइस कर रहा हूँ, ना तो मैं, ये मेरे जो इतने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और जस्ट ये मेरा नॉलेज है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये अगर आपको श्योर नहीं हो, आपको अगर 100 से क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, समझ लीजिए आपको 82 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं, okay, and you're sure that 75 is correct, then you should attempt only 75. Okay, otherwise your marks will be deducted for every wrong answer. If you are not sure, then you should attempt up to this paper. I have given you the calculation. Suppose you are attending 85 questions, 65 is right and 20 is wrong, then 0.25 for each wrong will be deducted. So every wrong answer you are attempting, then you have to face a penalties of 0.25 for each wrong question. जितने भी आप गलत करोगे उतने ही मार्क्स आपके डिडक्ट होते जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना आपको आता है उतना अटेंड करें, हंड्रेड्स के चक्कर में ना जाए। अगर आप ज्यादा श्योर नहीं हो
और आपका लग रहा है कि गलत हो सकता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मत अटेंड करें। आप ये फिर यहाँ पे इतने रिस्क ले सकते हो। अगर आपको पता है कि मेरा सारा का सारा 75 सही है, तो फिर आप इतना ही करके आ जाए। लेकिन फिर भी लग रहा है कि मैंने 75 किया, उसमें से कुछ रॉन्ग हो सकता है, तो ऑन एन एवरेज आप अपना प्लान बनाए। और क्योंकि आपको, अगर आप 90 भी लाते हो तो भी आपको पास सर्टिफिकेट ही मिलने वाला है, 65 लाते हो तो भी आप पास सर्टिफिकेट ही मिलने वाला है, 60 भी लाते हो तो भी पास सर्टिफिकेट। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा पास हो जाऊं मैं 60 के बियॉन्ड, 75 के आसपास आ जाए, इस बीच में कोई भी मार्क्स आ जाए तो चलेगा। ओके, नाउ फर्दर। सो दीज आर द चैप्टर्स एंड दीज आर द वेट्स ऑफ ईच चैप्टर्स। ये चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर्स के वेट्स हैं, कितने मार्क्स के लिए आएंगे। ये वेट्स इज लाइक अ मार्क्स। टोटल इज 100। टोटल विल बी 100 मार्क्स। सो वेट जो है यहाँ पे लिखा है वेटेज, ये मार्क्स है। और टोटल्स करोगे आप इसको तो 100 मार्क्स है। और ये फर्स्ट चैप्टर विल कवर 8 मार्क्स। फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे 8 मार्क्स के। एंड to score these 8 marks are very easy. You can easily score these. And we today we are going to try to cover around, you will get out of this around 6 to 7 marks easily with, if you are attending a today sessions. Then second, after attending a today session, you will easily get these full marks. Then third chapter, after attending a today session, this chapter is called 10 marks. If you attend this our sessions, today's sessions, you will easily score more than 6 marks easily. In 2 hours, we are not taking a detailed sessions. I will try to make in a further videos for detailed sessions where I will cover all the 100 mark syllabus. But today's sessions we are taking important sessions. आज का जो सेशन है इसमें मैं डिटेल सिलेबस कवर नहीं कर रहा हूँ 100 मार्क्स के। जो इम्पोर्टेंट्स एग्जाम प्रोस्पेक्टिव्स हैं उतने ही मैं कवर कर रहा हूँ, जिससे कि आप 2 घंटे की एक अगर वीडियो अटेंड करते हो तो आपका यहाँ पे मिनिमम जो है, मिनिमम टू मिनिमम 40 मार्क्स आपका इस वीडियो से पढ़ के आ जाना चाहिए। मैं कुछ मार्किंग कराऊंगा, तो इस वीडियो को अटेंड करने के लिए आपको आपके हाथ में स्टडी मटेरियल होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट कि आप उस बुक्स में मार्क्स कर पाए, या फिर आपके पास सॉफ्ट कॉपी हो जिसमें आप इजीली मार्क कर पाए। So in this today's sessions, you must having the book, physical copy or soft copy, so that whenever I am giving you the important marking, you should mark it in your book so that you can start preparation and you will score easily this 40 marks. Once you got this, you are thorough with the important sessions. Then if you do one reading of the books, then also you will easily pass. So please attend full videos and do the marking. Whenever I am giving you the marking, please try to make marking. जहाँ पे भी मैं मार्किंग देता हूँ आप प्लीज उसको मार्क करें। स्टॉक, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये दिस इज फॉर 10 मार्क्स एंड वी आर ट्राई our best. You will easily score up to 6 marks. Then registration of social stock exchange, again this is for 5 marks. You are again we will cover this important, out of this 3 marks you can easily score.
Then social auditor and social auditor and social auditor. Here also, this is for 12 marks. Today, I will cover the important sessions. Out of this, you can easily score seven marks easily. Then social audits and technique standards. This is for 13 marks. You will easily score 6 marks after attending the today's video. आप ये अगर अटेंड करते हैं सेशंस तो आपका यहाँ पे हम लोग इतना अच्छे से रिवाइज करेंगे, मार्किंग कराऊंगा जो आपको 6 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हो. देन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट. दिस इज application. This chapter is having a weightage of not only the 15 marks, case study 15 marks also. So this chapter weighted is 30 marks. So this chapter is 30 marks because chapter 8 case study is purely based on this chapter. If you know this 7 chapter, then you can easily score this. So again, within our time frame, we will try to cover this chapter so that you can able to score these questions also. So after attending today's session, you can easily able to score 7 marks from this and 5 marks from this. After attending today's sessions, then you can easily score. We will cover the full syllabus of this. You can easily score around 8 to 9 marks. This we will cover full, so you can easily score 4, and you can, this also we will cover, so you can easily score. So now you can take a total. So lower side, we will take a total 6 marks. 6, 4, then 6, then 3, 7, 6, 7, 5, 8, 4, and 4. You can take a total of this. चैप्टर वाइज आप अगर इसको टोटल करेंगे तो देखेंगे ये कितना हो रहा है. 6 plus 4 plus 6 plus 3 plus 7 plus 6 plus 7 plus 5 plus 8 plus 4 plus 4. So today we are covering up to 6 marks, 60 marks syllabus. And out of this, you can easily score 40 marks. Today we are covering 60 marks important sessions, and out of this you can easily score 40 marks. आज का जो 100 मार्क्स का सिलेबस है उसमें से 60 मार्क्स के टॉपिक्स कवर हो रहे हैं. उसमें से आपको बेयर मिनिमम आपके 40 मार्क्स तो कवर हो ही जाएंगे, जिसमें आप कवर तो 60 हो रहा है, बट आपके एग्जाम्स में ये हेल्प करेगा 40 मार्क्स के लिए. No. First chapter, now starting the session. First chapter, introduction of social sector and Indian financial market. Introduction of social sector. Under this, try to mark this important. What is the SDG? SDG stand for Sustainable Development Goal. SDG की फुल फॉर्म क्या है? Sustainable Development Goal. या आप इसको याद रख सकते हो, 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है.
This is important for 1 marks. In which year we have adopted or globally adopted this sustainable development goal? So this is the year important. In year 2015, we have adopted globally this mission. And in which year, up to which year we have to achieve this? 2030. हम लोगों ने कौन से ईयर में अडॉप्ट किया ग्लोबली? 2015 में। क्या अडॉप्ट किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें अचीव करना है बाय 2030. सो अप टू विच ईयर वी हैव टू अचीव दिस गोल? 2030. So please try to remember. Member of United Nations adopted in 2015 to achieve the sustainable development goal by 2030. So 3 crux of you have to remember. SDG stand for, then member of United States in which year adopted? 2015. And कब तक कर लेना है? Up to 2030. यहाँ पे 3 वे से क्वेश्चन पूछ सकता है. इसके लिए ये 1 मार्क्स यहाँ से, ये पूरे इससे आपका 1 मार्क बन सकता है. 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का फुल फॉर्म क्या है? कौन से ईयर में मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने अडॉप्ट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? 2015 में. और कब तक ये मिशन अचीव करना है? दैट इज 2030. नाउ how many SDGs are there? So there are 70. Okay, and in our country we have adopted in 2020. So how many SDG are there? If they are going to ask you how many SDG are there, so we have to write 17. कितने SDG हैं? 17 SDG. SDG का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. ये 17 लिस्ट है. अगर आप याद रखते हो वेल एंड गुड, नहीं याद रखते हो डरने की कोई बात नहीं है. मैंने भी याद नहीं रखा था. That is not a problem. You don't have to remember at all to pass this exam. But if you are capable to remember all these, it's better. I cannot able to remember full list, so I have not remember. You can follow. It's depend on you. So there are 17. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की मिशन है. एक सोशल सेक्टर्स में क्या क्या चीजें जरूरत है हमारे समाज के लिए? गरीबी हट नहीं होना, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी होना चाहिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होना चाहिए. तो ये एक 17 SDG है जो हमें ग्लोबली बाय 2030 तक ये सारे अडॉप्ट करने हैं, जिससे कि हम लोग एक अच्छी इन्वायरमेंट की तरफ, एक अच्छी कंट्री, एक अच्छा, हमारे देश में अगर एजुकेशन अच्छा होगा, हमारे देश में अगर गरीबी कम हटेगा, तो हम लोग एक डेवलप नेशन की तरह जाएंगे और अच्छा कंट्री बन सकते हैं. तो इसके लिए क्या है, ये SDG मिशन अडॉप्ट हुआ है. 2030 तक हमें अचीव करना है. कितने SDG हैं? 17. So please try to marks. This is also important. Concept of social enterprises. ये सोशल एंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट कौन सा है, क्या है, और ये कब इंपॉर्टेंस हुआ? सोशल एंटरप्राइजेस गेन इंपॉर्टेंस इन लेट 90s इन इंडिया. ओके, एंड this term was formally introduced in India in 1981 with the establishment of Ashoka, and after which other model emerged like a Selco, Solar, Basics, Barefoot, College, Arvind Eye Care and so on. ये देखिए अरविंद आई केयर, ये सब आपको यहाँ पे जो भी आप पढ़ोगे चैप्टर 1 to 7 दे विल आस्क यू इन द केस स्टडी. सो हियर यू हैव टू रिमेंबर दिस years and the
few examples of social enterprises in the past. So this is the example you have to remember. ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि कब ये सोशल एंटरप्राइज के कौन से ईयर में आया इंडिया में, और पास्ट में कब कब सोशल एंटरप्राइजेस यूजेस हुए हैं, जैसे कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ अशोका। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस, जस्ट एक बार आपको रीड करना है। देन दिस इज इंपॉर्टेंट। As per SEBI ICTR regulation, social enterprise means non-profit organizations or for-profit enterprises. तो SEBI ICTR क्या बोल रहा है? As per SEBI IDR, सोशल एंटरप्राइजेस किसको हम बोलेंगे? तो ये दो चीज को मिला के बोलेंगे, एक तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और एक फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस। तो ये क्या है? ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और ये क्या है? नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। अब नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का क्या क्या एग्जांपल है? सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, देन ट्रस्ट हो गया, सोसाइटीज हो गए। ये क्या है? जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, ये नॉन प्रॉफिट है। और ये क्या है? जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। So in the social enterprises, it will be included both NPO and for-profit enterprises. NPOs will be work for non-profit, and FP their intention to make the profit. यहाँ सोशल एंटरप्राइजेस में दोनों को एंटर किया गया है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी एंड फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस को भी। ये आपको याद रखना होगा, सोशल एंटरप्राइजेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ द एलिजिबिलिटी कंडीशन, कैसे सोशल एंटरप्राइजेस बन जाएंगे? एक तो ये हो गया कि सोशल एंटरप्राइजेस बनने के लिए आपको या तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा या फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस बनने पड़ेंगे। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, इसको हम आगे चैप्टर 3 में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको याद रखना है कि सोशल एंटरप्राइजेस के दो पार्ट्स हैं, एनपीओ एंड एफपी। So now I have not explained anything related to social enterprises. Just now I have explained that in social enterprises, it is included NPO and FP. NPO stand for non-profit organization and FP for profit enterprises. We will study in detail in chapter number 3, NPO and FP. So first, social enterprises definitions, then eligibility to become a social enterprises as per SEBI ICDR. So what is the eligibility? First, either they have to be NPO or FP. NPO or FP. Then second condition, their primacy of social intent. Their object should be out of 17 SDG they have to achieve. Anyone, if any company, even the profit making company is working towards the any of these SDG, अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी 17 एसडीजी में से कोई भी एसडीजी के ऊपर काम कर रहा है, जिसका इंटेंशन ही प्राइमेसी ऑफ सोशल इंटेंट है, 17 ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट करता है, तो वो सोशल एंटरप्राइजेस के डेफिनेशन में आ जाता है। फर्स्ट, सोशल एंटरप्राइजेस कौन होना चाहिए? एनपीओ एंड एफपी, और एफपी या तो एनपीओ होना चाहिए या तो एफपी होना चाहिए। एंड सेकेंड, उसका ऑब्जेक्ट जो है ना, प्राइमेसी ऑफ सोशल इंटेंट, इस 17 एसडीजी जो हमने पढ़ा है उसमें से कोई एक भी काम करता है तो फॉल हो जाएगा। So what are the 17 SDG? They are the same: irrigating hunger, poverty, malnutrition, equality. So you can go through these. You don't have to remember all this. Just you have to understand the logic. So there are 17. And the second, the social enterprise should target the undeserved, less privileged population segment or religion, recording lower performance in the development priorities of central and state government. जो कि अंडर प्रिविलेज लोग हैं,
जो कि अंडर, जो अभी तक कवर नहीं हुए हैं, तो उन लोगों को, ST SC, ऐसे लोगों को जो कि समाज के वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों को सुविधा देना, पैसे लोगों को, हमारे टारगेट बेनिफिशरीज होने चाहिए। और प्राइमेसी ऑफ इंटेंस जो है, इसको कंपल्सरली कवर होना चाहिए ना। तो अपना क्या था, सोशल एंटरप्राइजेस। इन सोशल एंटरप्राइजेस, 3A इज द NPO or FP. Second, the primacy of social intent out of these eligibility criteria. And under that, second part is the target beneficiary should be this underdeserved, undeserved, underdeserved or less privileged population segment or region recording a lower performance in the development priorities of central or state government. सेकंड, अभी इसको समझते हैं NPO। NPO होता क्या है, क्योंकि सोशल एंटरप्राइजेस में जब तक हम लोग NPO को डिटेल में नहीं समझेंगे, पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। तो ट्रस्ट, सोसाइटीज एंड सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी जो NGO की तरह रजिस्टर, आपने देखा होगा, फाउंडेशंस। NPO के लिए कौन कौन जा सकता है, एलिजिबल है? ट्रस्ट, सोसाइटीज एंड सेक्शन 8 कंपनी। In a trust also there is a two bifurcation is there. As per Indian Trust Act 8082 and as per separate statute of the state. तो ट्रस्ट में दो बाइफर्गेशन है। एक तो है कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तरह रजिस्टर हो ट्रस्ट, या फिर गुजरात एंड महाराष्ट्र में जो सेपरेट स्टेट एक्ट्स हैं, उन सेपरेट स्टेट एक्ट्स के तरह रजिस्टर हो ट्रस्ट, तो वो ट्रस्ट एलिजिबल होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकंड, सोसाइटीज, सोसाइटी रजिस्टर होना चाहिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू। एंड थर्ड, सेक्शन 8 कंपनी जो है, कंपनीज एक्ट 2013। सो सेक्शन 8 कंपनीज नीड टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर सेक्शन 25 ऑफ ओल्ड एक्ट्स लाइक कंपनीज एक्ट 1956। अगर पुरानी कंपनी है तो सेक्शन 25 के अंडर रजिस्टर होना चाहिए 1956 कंपनीज एक्ट के तहत। तो यहाँ पे ट्रस्ट, सोसाइटीज एंड सेक्शन 8 कंपनी एलिजिबल फॉर NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। Their documents, this line you have to make remember important. For trust, the important document is trusted. Trust के लिए trusted important document होता है। Then societies के लिए MOA and AOA, bylaws भी होते हैं। एंड सेक्शन 8 कंपनीज के लिए MOA and AOA ही होता है। तो यहाँ पे bylaws आपको सोसाइटीज के लिए, ट्रस्ट के लिए ट्रस्टेड, सोसाइटीज के लिए बायलॉस एंड कंपनीज के लिए MOA एंड AOA। कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट, कितने ट्रस्टी होने चाहिए ये आपको याद रख लेना है। कितने मेंबर्स होना चाहिए सोसाइटीज का, यहाँ पे कितने डायरेक्टर्स और कितने मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट एंड चेंजेस इन इक्विटी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। अब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम थिंग होगा, बट ट्रस्ट और जहाँ पे NPO का है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स, एक्सपेंडिचर एंड इनकम बनेंगे इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज receipt and payment and expenditure and income account need to be
prepared. Social objective. The social objective of organization will denote that it created incorporate to serve a social good and has a social mission. ये आपको यहाँ से यहाँ तक याद रख पढ़ लेना है. सोशल ऑब्जेक्ट के लिए, सोसाइटी के लिए, कुछ सोशल कॉज के लिए अगर कुछ काम करते हैं, वही हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है. और वो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सोसाइटी के फॉर्म में हो सकती है, ट्रस्ट के फॉर्म में हो सकती है, एंड सेक्शन 8 कंपनीज के फॉर्म में हो सकते हैं. इनका काम होता है जो प्रॉफिट जनरेट करना, इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है. तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही है उनका कैन नॉट पोज अ सोशल ऑब्जेक्ट. जो 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 प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, इसीलिए तो उनका नाम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आता है. इसको डिटेल्स में हम लोग इनपुट एक्टिविटीज ये चैप्टर 7 में हम लोग कवर करेंगे. तो जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है वही इतना ही कवर करना है इस बार. देयर आर स्टेक होल्डर्स, internal and external stakeholder, direct and indirect stakeholders. So sometimes they ask that internal, external stakeholder. So internal stakeholders include individuals, group, which are the part of the organization. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं, चाहे उसका एम्प्लॉय हो, बोर्ड मेंबर्स हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो, ये सारे क्या होंगे? इंटरनल स्टेक होल्डर होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आर द नॉट अ पार्ट ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट. जो कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरनल पार्ट नहीं होंगे, उसको एक्सटर्नल बोलेंगे. उसका एग्जाम्पल है फंडर, गवर्नमेंट, कंसल्टेंट, वॉलंटियर्स, बेनिफिशरीज एंड कस्टमर्स. So these are the example of external stakeholders. Please try to remember. Direct and indirect stakeholders. Direct stakeholders are directly involved in social interventions or get directly affected by the social intervention. तो डायरेक्ट स्टेक होल्डर जिसको डायरेक्टली कोई भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो डायरेक्टली उसको इफेक्ट कर सकता है. इंटरनल इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स को सोशल इंटरवेंशन, सोशल प्रोग्राम्स वो इफेक्ट नहीं करता है, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व. ऐसे स्टेक होल्डर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उसको जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो इफेक्ट करता है, सोशल प्रोग्राम्स, ऐसे स्टेक होल्डर जिसको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता है कोई भी सोशल प्रोग्राम्स, वो इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स. यहाँ पे आपको एक नजर मार लेना है टेबल्स में, आपको जस्ट एक व्यू मारना है आपको. नाउ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. इंडियन फाइनेंशियल मार्केट in an Indian financial market there are two types of market: capital market and debt market. You can also call securities market. Capital market there are two: primary and secondary. Primary markets are like a IPOs when the first time shares are issued. Secondary is like a
when the shares are traded through the stock exchange. Stock exchange. फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैपिटल मार्केट एंड डेट मार्केट. कैपिटल मार्केट्स, प्राइमरीज मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट जहाँ पे फर्स्ट टाइम शेयर्स आईपीओ लॉन्च होते हैं. सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे ट्रेडिंग होता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, दैट इज अ सेकेंडरी मार्केट. सो फर्स्ट टाइम जब भी शेयर्स इशू होता है वो प्राइमरी मार्केट में ही आईपीओ आते हैं. फिर बाद में लिस्टिंग के बाद यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड चालू होता है. डेट मार्केट, ये डेट मार्केट में भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है. ये भी जब फर्स्ट टाइम इशू हो रहा है प्राइमरी, एंड सेकेंडरी जब लिस्ट हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, तो डेट सिक्योरिटीज भी वहां पे ट्रेड होगा. सो इन डेट मार्केट ऑल्सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी. देयर इज वन मोर मार्केट, दैट इज अ मनी मार्केट. मनी मार्केट, दिस मार्केट फॉर ट्रेजरी बिल्स, commercial papers, certificate of deposits. So these are the short-term instruments. Market, this short-term instrument is up to 1 year. So money market भी एक टाइप का मार्केट होता है जहाँ पे एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड किया जाता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल पेपर्स है एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है. तो मनी मार्केट का जो यहाँ पे आपको याद रखना है वो मैक्सिमम टेनर जो होगा 1 years होगा. सो बिलो 1 year ही यहाँ पे होता है मनी मार्केट का टाइमलाइंस. सो दिस इज अबाउट इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. अब फाइनेंशियल मार्केट में आपको कितने रेगुलेटर होते हैं ये याद रखना है आपको. हाउ मेनी रेगुलेटर्स आर देयर इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. सो आरबीआई, आरबीआई इज फॉर व्हाट? आरबीआई किस लिए है? और बैंक्स, एनबीएफसी और फेमा. तो आरबीआई क्या करता है? बैंकों को रेगुलेट करता है, फिर एनबीएफसी को रेगुलेट करता है, फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो फॉरेन से फंड्स आ रहे हैं, एफडीआई इन्वेस्टमेंट, ये सारे फेमा लॉ के थ्रू रेगुलेट करता है. तो आरबीआई का काम कहाँ कहाँ पे रेगुलेटरी वर्क है? ये मनी मार्केट को भी कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई. तो यहाँ से आपको क्वेश्चन निकल के आ सकता है. प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर दिस कॉन्सेप्ट. आरबीआई इज रेगुलेटर फॉर बैंक्स, एनबीएफसी, फेमा, मनी मार्केट्स, एक्सेट्रा. second regulator is a SEBI. SEBI is a regulator for capital market. SEBI is a regulator for capital market. SEBI क्या है? SEBI रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का. सेबी रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का, ये आपको याद रख लेना है. देन सेबी, इससे पहले क्या था? सेबी से आने से पहला सेबी का एक्ट आया 1992 में. क्या उससे पहले मार्केट रेगुलेट नहीं हो रहा था? हो रहा था. सीसीआई रेगुलेट करता था, कैपिटल कंट्रोलर ऑफ इशू. आफ्टर हर्षद मेहता स्कैम, अपने गवर्नमेंट को लगा जरूरी भी था कि एक रेगुलेटर आना चाहिए. सो वी फेल्ट नीड ऑफ a separate regulator who will regulate the capital market after the scam of 1992 by the Harshad Mehta. Then we made a SEBI. SEBI is a, after passing a SEBI Act 1992. So SEBI Act 1992. Then SEBI become a regulator. Full form of SEBI is Security Exchange Board of India. So second regulator. Then the third regulator, IRDAI. IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India. So prior to IRDAI,
Act 1999, there was a superintendent of insurance, controller of insurance was there. They are regulating the insurance industry, and only the government companies are allowed to do this business. So IRDA Act 1999 से पहले इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ इंश्योरेंस अंडर कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस वो मॉनिटर कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे. बट उस टाइम पे 99 से पहले गवर्नमेंट ही इस बिजनेस को संभाल रहा था. जैसे ही कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में हम लोगों ने लाया, उसके बाद सेबी एक्ट आ गया, कैपिटल मार्केट के. देन वी फेल्ट दैट, वी रियलाइज दैट there is a need of separate regulator for insurance industry, and we should allow foreign insurance company to enter into the India. And after we passed the IRDA Act 1999, then IRDA become a regulator, and nowadays we will see that there are many insurance companies are doing the business. Like a, you can see the example like a foreign player, Allianz, that Bajaj Alliance, the Bajaj and Allianz both joint venture. They started a Bajaj Alliance. Then ICICI Prudential, Prudential is a foreign player, and ICICI is the Indian player. Both started a joint venture. Then Tata AIG, American International Groups, and Tata Groups. So this is the after 1999 Act IRDA, they allowed a private insurance company to start this insurance business. सो IRDA एक्ट 1999 के बाद हम लोगों ने देखा कि IRDA रेगुलेटर बना इंश्योरेंस का, और उसके आने के बाद प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस मिलना आसान, लाइसेंस देना चालू हुआ. एंड ब्रोकर सिस्टम्स आए, री इंश्योरेंस बिजनेस का रेगुलराइजेशन किया, और बहुत सारे एक सेपरेट रेगुलेटर आने के बाद और भी डेवलपमेंट हो जाती है उस इंडस्ट्री के लिए. सो थर्ड रेगुलेटर इज IRDAI. दे रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस, reinsurance business, co-insurance business. Then they also regulate all the intermediaries like a broker, agent, then web aggregator like a Policy Bazaars. So third regulator. Then fourth financial regulator is PFRDAI, Pension Fund Regulatory Development Authority of India. This is regulating the NPS, नेशनल पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को रेगुलेट कौन करता है? PFRDA. सो अनदर फॉर पेंशन फंड, दिस इज रेगुलेटर फॉर पेंशन फंड. ये पेंशन फंड के लिए रेगुलेटर है. ओके. एंड इंसॉल्वेंसी लॉ के लिए IBBI. नाउ मनी मार्केट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. मनी मार्केट, integral part of financial system, include instrument that provide a short-term fund. So short-term funds, you have to remember importantly, maturing ranging from overnight to 1 year. This line, two lines you have to remember: short-term need of fund and overnight to 1 year. So money market किस लिए होता है? ये short-term requirement funds के लिए इशू होते हैं, और इसका पीरियड क्या होगा? overnight to 1 year. These two line you have to remember. The example is like a repo, reverse repo, certificate of deposit, treasury bills, commercial paper, जो मैंने पहले बताया था. Then security market, सिक्योरिटी मार्केट्स को कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, और इसके दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. मैंने ऑलरेडी कवर किया है. आई हैव ऑलरेडी कवर. प्राइमरी इज लाइक अ न्यू इशू, IPOs, एंड सेकेंडरी द सिक्योरिटी ट्रेडेड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज. आपको इसमें दो याद रखना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी समझाया है, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. देन इंटरमीडिएट अभी हम सीखेंगे. नाउ इंटरमीडिएट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस. मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन
This is comprises of three. One is clearing corporations, second is stock exchange, and third is depository. What is the function of clearing corporations? होता क्या है ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस? तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस बेसिकली हम जो ट्रेडिंग देखते हैं, suppose we are doing a trade today, then after t plus 2 days or few security t plus 1 days, the settlement is done. Then in this example, suppose today I am placing an order, then after t plus 2 days I should get the security. Suppose I am buying the shares, then I should get on t plus 2 days securities, and the seller should get the fund. So it is a whom duties. किसका जिम्मेदारी है सेटलमेंट कराने का? अगर सामने वाले ने शेयर्स नहीं दिया तो किसकी जिम्मेदारी है? तो ये जो काम है सेटलमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट का, ये काम है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के तीन काम है, थ्री मेन फंक्शन ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। फर्स्ट इज द क्लियरिंग, सेकेंड इज द सेटलमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस, okay, and third is the risk management. So these are three works: clearing, settlement, and risk management. So this is a work of clearing corporations. So on t plus 2 days, buyers should get the securities and sellers should get the fund. क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस का मेन काम है क्लियरिंग करना, सेटलमेंट करना एंड रिस्क मैनेजमेंट करना अगर कोई डिफॉल्ट करता है पार्टीज। तो क्लियरिंग जो सेल कर रहा है सिक्योरिटी, उसको टी प्लस 2 डेज में, अगर सिक्योरिटी कोई सिक्योरिटी टी प्लस 1 में है तो उसको टी प्लस 1 में पैसा मिल जाना चाहिए सेलर को। टी प्लस 2 का है कॉन्सेप्ट, तो उसको टी प्लस 2 में पैसा मिल जाना है। सपोज मंडे को ट्रेड किया है तो वेडनेसडे टी प्लस 2 में उसको मिल जाना चाहिए पैसा और बायर को सिक्योरिटी मिल जाना चाहिए। तो ये सारा काम किसकी जिम्मेदारी है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की। अगर सेलर के पास सिक्योरिटी नहीं है, उसने शॉर्ट सेल मार दिया, सेल कर दिया सिक्योरिटीज, तब तो मैटर ऑक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का भी काम किसका है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। So first, clearing corporation is done. Second, stock exchange. Stock exchange where we are placing the orders. Like a stock exchange is like a market where the buyer and seller met. जहाँ पे बायर एंड सेलर मिलते हैं और ट्रेड करते हैं। तो ये बीएसई क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। एनएसई क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। ये आप सिंपल सब लैंग्वेज में समझ लीजिए, बीएसई एनएसई एक मार्केट है जहाँ पे बायर एंड सेलर ब्रोकर के थ्रू मिलते हैं और ट्रेड करते हैं। और ब्रोकर क्या होता है? इनके मेंबर्स होते हैं। ब्रोकर्स आर द मेंबर ऑफ बीएसई और एनएसई। We can not able to trade without the broker. Even we are trading through the any app, Zerodha or Sharekhan, Angel Broking, we have to take the terminal of brokers only. ब्रोकर के ऐप के थ्रू ही हम लोग ट्रेड कर पाते हैं, डायरेक्टली ट्रेड करना अलाउ नहीं है। तो मार्केट स्टॉक एक्सचेंज मतलब मार्केट, बीएसई एनएसई। एंड सेबी के लैंग्वेज में बोले, सेबी आईसीटीआर में, stock exchange is like a recognized stock exchange having a nationwide terminal. Stock exchange means a recognized stock exchange having a nationwide terminal. Stock exchange समझ में आया? Then depository. As per Depository Act 1996. Depository Act 1996. Prior to 1996, we were holding the securities in physical mode. So prior to 1996, we were holding the security in a physical mode. After this Depository Act 1996, we started the holding of security in a demat mode. Now, when we are holding the security in a demat mode, we are the beneficial owner. We are not the registered owner. When we are holding the security in a physical mode, then we are the registered owner also and beneficial owner also. But when we are holding the security in a demat mode,
then we are only the beneficial owner. We will get all the benefit like all corporate actions, bonus, dividend, all. But registered members are the depository. So we are only the beneficial owner. But when we are holding the security in a physical mode, we are a beneficial owner also and registered owner also. So nowadays, we cannot able to transfer the security without demat. Physical shares tradings are not allowed, but we can hold the physical securities and we will get all the benefit. Physical securities 1996 डिपोजिटरी एक्ट से पहले हम लोग फिजिकल में रखते थे, उसके बाद डीमेट का कॉन्सेप्ट आया और आज हम लोग सिक्योरिटीज डीमेट में रखते हैं। और इनफैक्ट सेबी एलओडीआर के हिसाब से शेयर्स जो है ना फिजिकल अभी ट्रेड नहीं होंगे, अभी सिर्फ डीमेट में ही सिक्योरिटी ट्रेड होगा। एंड जो फिजिकल सिक्योरिटी है उसके हम लोग रजिस्टर्ड ओनर भी होते हैं और बेनिफिशियल ओनर भी होते हैं। बट अगर सिक्योरिटी डीमेट में है तो हम उसके बेनिफिशियल ओनर होते हैं, हमारे को सब सारे बेनिफिट मिलता है, बट उसके जो रजिस्टर्ड ओनर है वो डिपॉजिटरी होता है। तो डिपॉजिटरी देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू डिपॉजिटरी, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। ये दो डिपॉजिटरी है। So clearing corporation, stock exchange and depository. Depository where we, in these two depository, we are holding the securities. Depositories having a agents like a DP, depository participants. Depository participants are the agents of CDSL, NSDL. Where we are maintaining our demat account. So suppose we are maintaining a demat account with HDFC Security. That means HDFC Security is a DP. DP means depository participant. They are the agent of either CDSL or NSDL. CDSL, NSDL is depository, and HDFC Security, Sher Khan, then Jirodha, they all are the DP, depository participants. Again, broker are the member of stock exchange. Broker role is different and DP role is different. DP where we are holding the demat account. Nowadays, we are maintaining DP and broker account with the same company. That's why we will not be able to differentiate. But DP role is to maintain your demat account, and broker role is you can place a trade through the broker. So now understood. So there are two depository. You can easily remember all this. Is important. Depository participants are the agents of depository. Now custodian. Second intermediary, custodian. In the first intermediary, we learn three. In the first, market infrastructure institution, clearing corporation, stock exchange, and depository. In custodian, we hold the securities and manage on the behalf of institutional investors. Custodians, they maintain the accounts of institutional investors like LIC mutual fund, GIC mutual funds, then pension funds. So as per regulatory compliances, these AMC of mutual funds and insurance company, they have to open the accounts with the custodians. Custodian will hold the securities and custodian will collect all the corporate access benefit. जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करते हैं, उस पैसे को शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, या हम लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। बट वो इन्वेस्ट करके सिक्योरिटी जो भी कलेक्ट करता है वो अपने पास नहीं रख सकता, उसको एक कस्टोडियन अपॉइंट करना पड़ेगा जो ये सिक्योरिटीज मेंटेन करेंगे। कस्टोडियन जो कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इंडिया का फर्स्ट जो कस्टोडियन है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये और इसको LIC, GIC ऐसे जो गवर्नमेंट कंपनीज है उन्होंने मिलके बनाया था ये फर्स्ट। देन आजकल तो HDFC, nowadays HDFC is also doing this work. Then DOS Bank is also doing this custodial work.
So custodials, they are basically safekeeping of the securities, remote mode also and physical also, and they collect all the corporate action benefits. Then stockbrokers are the member of stock exchange, So whenever we are giving the orders of buying and selling, we have to take the help of stockbrokers or their platform we have to use. So आजकल हम लोग खुद से भी मोबाइल से करते हैं, तो ब्रोकर का ऐप यूज करते हैं हम लोग. So through the broker we can able to do. Authorized person means sub broker. Okay. Investment banks, they provide the strategic advice to the companies. The company's government and other capital requirement and investment decisions. Like their role is in a advisory services for business expansion, projecting, financing and merger. So investment bank जो कि merger acquisitions में help करता है, प्लस बिजनेस को एक्सपांड करने में, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में, स्टार्टअप्स को फंडिंग कराने में, ये सारा काम इन्वेस्टमेंट बैंक का होता है. इंश्योरेंस कंपनी, एज पर इंश्योरेंस एक्ट 1930, इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंश्योरेंस का जो पहला कानून है इंश्योरेंस एक्ट 1938, उस एक्ट के थ्रू कंपनीज रजिस्टर्ड होना चाहिए. लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, जिस टाइप का आप लाइसेंस लोगे उस टाइप का काम कर सकते हो. इंश्योरेंस कंपनीज में ये टाइप्स हो गए. उसके बाद इंटरमीडियरीज में ब्रोकर, एजेंट्स, सर्वेयर एंड लॉस असेसर्स, वेब एग्रीगेटर, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म, बैंक का इंश्योरेंस. तो ये सारे इंटरमीडियरीज आ रहा है. इनका रेगुलेटर कौन है आज के डेट में? IRDAI. पेंशन फंड, पेंशन फंड्स आज के डेट में जो HDFC फंड मैनेजमेंट है, HDF पेंशन फंड, SBI पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ये सारे पेंशन फंड्स स्मॉल कंट्रीब्यूशंस लेते हैं लोगों से एंड ये फंड इन्वेस्ट करते हैं, और इनका रेगुलेटर जो है PFRDA है. So they take the contribution from the individual and invest these fund according to the direction to the contribution to the retirement corpus. तो जो इन्वेस्टर का गाइडेंस डायरेक्शन है उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं. So they invest in debt and equity combinations as per the risk selected by the investors. Asset management companies and portfolio management. AMC ये किसका होता है? ये म्यूचुअल फंड के कंपनीज में AMC होते हैं. ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये AMC कंपनीज में फंड मैनेजर होता है और वो पूरा असेट मैनेजमेंट का काम कर देता है. पोर्टफोलियो मैनेजर ये एक सेबी से रजिस्टर्ड होता है. So portfolio manager registered with the SEBI, their role is to manage the portfolio of individual corporates, and for that they charge the separate fees. So portfolio manager are the manager charge the investor fees for their services. So portfolio manager need to be registered with the SEBI. Asset management company also need to be registered with the SEBI. So under this mutual fund companies, so all the mutual fund company having their own MCs, Tata Mutual Fund, Birla Mutual Fund and all. Investment advisor, again, this is also need to be registered with the SEBI. Investment advisor, research analyst. Again, this investment exam, 6-hour exam is there. If you want to become an investment advisor, then you can, there are 2 levels, 3-hour one exam, 3-hour two second exam. So total 2 exam of 6 hours you can appear, and after that you can able to register
as an investment advisor, and you can give the advice to any your client, and you can charge your fees. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना है सिक्योरिटी मार्केट सिक्योर शेयर से रिलेटेड, तो आप इसका लाइसेंस ले सकते हो, और जो ये एडवाइस करता है उसको कंपलसरी ये एग्जाम देना है, और उस ये क्लाइंट से फीस भी चार्ज कर सकता है। रिसर्च एनालिस्ट वो इंडिविजुअल एडवाइस नहीं देता है, वो पूरा ओवरऑल अपना रिपोर्ट पब्लिश कर सकता है पब्लिक में, और वो किसी से फीस चार्ज नहीं कर सकता है। वो एक इंडिविजुअल ब्रोकिंग फॉर्म या किसी कंपनी को फीस चार्ज करेगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिविजुअल क्लाइंट्स होते हैं और वो अपना एडवाइस देके फीस चार्ज कर सकता है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में कमीशन ले सकता है, या तो फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का कमीशन ले सकता है। दोनों काम नहीं कर सकता, दोनों रेवेन्यू नहीं कर सकता। क्रेडिट रेटिंग कंपनीज, आइक्रा, केयर, क्रिसिल्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्रेडिट रेटिंग कंपनी। ये क्या काम है इनका? ये फाइनेंशियल सिचुएशन किसी भी इशूअर का बताते हैं। कोई भी इशूअर जो अपना सिक्योरिटी इशू कर रहा है, कोई शेयर्स अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है, तो उसका सिक्योरिटीज कोई डेट इंस्ट्रूमेंट ला रहा है तो उसकी क्या सिक्योरिटीज की रिस्क है, ये कौन बताएगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। दे रैंक financial situation of the issuing entity, then they rank the various instrument in terms of their ability of safely repay the debt and interest. Then KYC registration agents, KRA, short form is KRA. You have to remember this. So their role is to register the KYC. रजिस्टर द केवाईसी। यहाँ पे इस सेंटर पे आप जाते हो अपना केवाईसी अपडेट करने के लिए। एक बार आपने सेंट्रल केवाईसी कर दिया तो सारे इंटरमीडियरी फाइनेंशियल मार्केट में वहीं से डेटा उठा लेंगे। सो वंस यू हैव टू रजिस्टर विद द सेंट्रल केवाईसी और केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, देन ऑल द इंटरमीडियरीज you don't have to produce again and again KYC, they will fetch your data. RTA, registrar and transfer agents, Carvi, CAMS, then TSR also now become a links in time. So they are the RTAs. RTAs का रोल क्या होता है कि जब भी आपको किसी म्यूचुअल फंड्स में नेम चेंज कराना है, कोई भी कंप्लायंसेस करना है, तो आप जाके डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनीज में जा सकते हो, या तो फिर आप कैम्स में चले जाओ। ज्यादातर म्यूचुअल फंड कैम्स ही हैंडल कर रहा है, कुछ म्यूचुअल फंड कार्वीज हैंडल कर रहा है। नाउ इसका नाम के फिनटेक है। सो के फिनटेक ये रिलायंस म्यूचुअल फंड या अदर्स प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, मोस्ट ऑफ टाटा, कोटक्स, जहां पे भी आपको या तो डायरेक्टली आप कंपनी को जा सकते हो या फिर आप कैंप्स में चले जाओ। कैंप्स में जाने से क्योंकि कंपनीज को भेजोगे वो भी कैंप्स को भेजेगा, क्योंकि उन्होंने अपना रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ये काम के लिए इनको अपॉइंट किया है। वैसे शेयर्स के रिलेटेड कोई भी इशू है तो भी आपके किसके पास चले जाओगे? टाटास का होगा तो आप लिंक इन टाइम के पास चले जाओगे, कोई भी टाटा का कंपनीज होगा। पहले TSR डायरेसो था उनका, डायरेसो ये हैंडल करता था, अभी इनका लिंक इन टाइम। सो यहाँ पे आप, क्योंकि आप कंपनीज को भी लेटर लिखोगे तो कंपनी इनको भेज देगा, तो आपका टाइम बचत होगा। आप डायरेक्टली इनके पास चले जाओ। तो ये इन्होंने अपना ये काम किसको दिया है? जैसे ACC लिमिटेड है, अभी ACC लिमिटेड खुद ही कर रहा है, उसने ये काम आउटसोर्स नहीं किया है, उसने अपना RTA अपॉइंट नहीं किया है। तो ये RTA अपॉइंट करने से क्या होता है, इन्वेस्टर का कंप्लायंस इजी हो जाता है थोड़ा सा। सो देख लीजिए क्या KYC अपडेशन प्रोसेसिंग ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द इश्यूअर्स। So they act on the behalf of issuing company. NBFCs and HFC Housing Finance Company, LIC Housing Finance, GIC Housing Finance, LIC Housing Finance, GIC Housing Finance, Central Bank Housing Finance. So these are the example of housing finance. Non-bank NBFCs, Credit Bureau. Credit Bureau, credit information companies keep record of loan servicing behavior of a
borrower and assign them credit score। अगर हम लोग किसी से लोन लेते हैं तो हम लोग जो पेमेंट करते हैं, लोन का ईएमआई चुकाते हैं, तो उसका एक रिकॉर्ड बनते जाता है। वो कौन मेंटेन करता है? क्रेडिट ब्यूरोस कंपनीज मेंटेन करती है और अपना एक स्कोर देते हैं। So whenever we take a loan, whenever we pay the loans, EMIs and all, so the credit bureaus companies are making a record of all this. So next time whenever we go for loan, they check our credit score, whether the credit score is good or bad. Based on that, another bank will give a loan or not. तो हम लोग जब भी कोई सेकंड लोन लेने जाएंगे तो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड्स चेक होगा, उसमें देखा जाएगा कि हम लोगों ने लोन का पेमेंट किया है नहीं किया है, क्या अपना हिस्ट्रीज है। ये रिकॉर्ड करने का काम किसका है? क्रेडिट ब्यूरोज और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का। नाउ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के कितने टाइप्स हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर को रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी कहते हैं, और इसका इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज, ये आपको याद कर लेना है। रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट वैल्यू नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआई एंड एक एफपीआई। एफपीआई स्टैंड फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड डीएफआई स्टैंड फॉर डोमेस्टिक फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो ये अपनी कंट्री का होगा डोमेस्टिक, और ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो टाइप के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होंगे। इन्वेस्टर कितना? रिटेल, रिटेल जिसका 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, वो रिटेल में आ जाएगा। एंड इंस्टीट्यूशनल में दो टाइप आ जाएंगे। एक होगा डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो अपनी इंडियन कंपनीज है, बैंक्स है, इंश्योरेंस है, कंपनीज है, ये सब। और एक होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो कि फॉरेन की कंपनीज होंगी। एक नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी होता है, जो कि जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंडिविजुअली है, जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख से ज्यादा होगा। Accredited investors, the concept of class of investor who have understanding of various financial product and risk return associated with them, and therefore they are able to inform decisions regarding their investment। जो accredited investor जो होते हैं, इनके पास अच्छा खासा इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, और ये एक बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनको क्वालिफाइड इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी बोल सकते हैं। इसमें आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गया, देन पेंशन फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, आर्मी पेंशन फंड्स एंड ऑल, ये सारे आ जाते हैं इसके अंदर। इशूअर का क्या रोल है? whenever the issuer raise the money by or securities। hello, I will call you, I'm in a lecture। the role of issuer और ऑर्गेनाइजेशन रेज द मनी बाय इशूइंग द सिक्योरिटी। ये इशूअर कौन होता है? जो अपना आईपीओज लेके आ रहा है मार्केट से फंड लेने के लिए। ये शॉर्ट टर्म्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म्स हो सकते हैं, मनी मार्केट हो सकता है इंस्ट्रूमेंट, या फिर लॉन्ग टर्म फंड्स हो सकते हैं। डेट ला सकता है, शेयर्स ला सकता है। प्राइमरी मार्केट्स फर्स्ट टाइम अगर लाएगा तो प्राइमरी मार्केट आईपीओ, सेकेंड टाइम जब शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे, ट्रेडिंग चालू होगा सिक्योरिटीज में। नाउ द फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर। फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फर्स्ट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू इट्स डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेट overseas activities of banking system, insurance and pension sectors।
तो देखो बैंकिंग के लिए तो नॉर्मली आरबीआई रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस के लिए पीएफआरडी आईआरडीए, एंड पेंशन के लिए पीएफआरडीए। बट इनके ऊपर भी एक सिस्टम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओवरऑल इस इनको मॉनिटर करता है, जो ओवरऑल एक्टिविटीज है बैंकिंग सिस्टम के, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम को, इंश्योरेंस को, पेंशन सेक्टर को। अगर आपके ऑप्शंस में मैंने ये आता है तो आपको ये लिखना है कि बैंकिंग का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई, इंश्योरेंस का आईआरडीए, एंड पेंशन का पीएफआरडीए। बट ये भी तो ओवरऑल मॉनिटर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू इट्स डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो अंदर सेकंड नेक्स्ट डिपार्टमेंट, रेगुलेट द कैपिटल मार्केट एंड इट्स पार्टिसिपेंट। ओके, so SEBI is regulating capital market, no doubt, but after SEBI, this is the under Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, क्योंकि सेबी के ऊपर भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना मिनिस्ट्री से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सिंपली द ऑल द कंपनीज एक्ट मैटर। To set how to setting up the company, functioning, audit, control, everything. So Ministry of Corporate Affairs, all the matters of Companies Act. Reserve Bank of India to regulate the issue of banks notes and keeping reserves with the issuing monetary stability in India. So banks का काम क्या है? Monetary policies, control the inflation and all. So RBI is the regulator of banks, NBFC and all. SEBI, already explained you. SEBI Act 1992 regulate the primary regulator of securities market in India. Please try to remember this. This tagline, to protect the investors of in the security and promote the development and regulate the security market. So इनका ऑब्जेक्ट क्या है? इन्वेस्टर का राइट्स को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना सिक्योरिटी मार्केट को। So two objects basically, to protect the interest of investors and to promote the finance security market. IRDA, regulator of insurance industries, pension fund, PFRDA for pension fund, national pension scheme system. Types of securities, equities and debt. Under equities and debt, equities are shares and debt. Under shares there are two types, equity and preference. What is the difference between equity and preference? Equity and preference में क्या difference है? तो preference के पास दो rights है। एक फर्स्ट राइट्स क्या है कि जब भी कोई डिविडेंड पेमेंट होगा तो सबसे पहला प्रेफरेंस को होगा, बाद में इक्विटी को। सेकंड, whenever capital repayment is there in case of winding up or liquidation, first capital payment will go to preference. So in case of dividend payment and capital repayment, first payment will goes to the preference shareholder than equity. तो प्रेफरेंस के पास दो प्रेफरेंस है, एक तो डिविडेंड मिलेगा उसको, और सेकंड कैपिटल रिपेमेंट जब वाइंडिंग अप लिक्विडेशन के केस में पहला इसको मिले, इसके लिए इसका नाम प्रेफरेंस है। इक्विटी के पास इक्विटेबल राइट्स है। इक्विटी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इक्विटी विथ इक्वल राइट्स एंड इक्विटी विथ डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स। सो एग्जांपल ऑफ डीवीआर इज टाटा मोटर डीवीआर शेयर्स। क्या है? इक्विटी भी दो टाइप के होते हैं, एक इक्वल राइट्स, सारे मेंबर्स को इक्वल राइट्स हैं, एक सेकंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। यहाँ पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होगा या तो होगा ही नहीं, यहाँ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। एक एग्जांपल है, टाटा मोटर ने डीवीआर शेयर इशू किया, यहाँ पे इनको डिविडेंड मिलेगा लेकिन वोटिंग नहीं मिलेगा। डिपेंड करता है किस टाइप का इनका टर्म्स एंड कंडीशन है। सो इक्विटी यू हैव अंडरस्टूड। नाउ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स
are like a four types: forward, future, options and swap. डेरिवेटिव कितने टाइप के? चार टाइप के: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप। फॉरवर्ड क्या होता है? दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है। दो पार्टीज के एग्रीमेंट, देयर इज ए नो स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व, नो स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व इन बिटवीन, सो काउंटर पार्टी रिस्क टू बी बेयर बाय द पार्टीज इटसेल्फ, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बीच में नहीं। फ्यूचर क्या है? यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा। ऑप्शंस क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस: कॉल एंड पुट। when we buy call, when we are thinking that the price is going to increase, when we buy put when we are thinking that price is going to decrease. कॉल हम कब बाय करते हैं? जब हमें लगता है शेयर्स बढ़ने वाला है। पुट कब बाय करते हैं? जब शेयर्स गिरने वाला है। और कॉल कब सेल करते हैं? उसका उल्टा, जब प्राइस गिरने वाला है तब कॉल सेल करते हैं। पुट कब सेल करते हैं? जब प्राइस बढ़ने वाला है। सो दिस इज ऑप्शन। swaps, again when there is a interest rate risk, then the two party will swap each other obligations. One party want a fixed rate, another party want floating rate, but they got oppositely from the bank, so they both the party will swap and they will take the benefits of that. So that is a swap. But for your syllabus, just you have to remember four types of swap. And so derivative means which derive a value from other basic underlying variables, जिसका वैल्यू किसी बेसिक अंडरलाइंग वेरिएबल से। जैसे फ्यूचर्स अगर निफ्टी का है, तो निफ्टी का फ्यूचर्स निफ्टी जैसे अप करेगा, निफ्टी जैसे बढ़ रहा है, उस हिसाब से डिसाइड होगा। तो अंडरलाइंग क्या है? निफ्टी। सेंसेक्स का फ्यूचर्स, तो सेंसेक्स का फ्यूचर डिपेंड करेगा सेंसेक्स के ऊपर। सो डेरिवेटिव विच डिराइव अ वैल्यू फ्रॉम वन और मोर बेसिक underlying variables. Exchange traded derivatives in India are futures and options. Future contracts are agreement between buyer and seller to buy and sell the underlying security at predetermined price and quantity on a predetermined date. जब भी दो पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट होती है फ्यूचर डेट में, फ्यूचर प्राइस का, कि हम लोग ये एग्रीमेंट, ये ट्रांजेक्शन अभी कर लेते हैं, हम लोग फ्यूचर डेट में ये सेटलमेंट करेंगे। जैसे किसान का फसल आने वाला है, तो किसान के पास भी रिस्क है कि उसका प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक कंपनी से जिस जो बिस्किट बनाती है, तो उसको वीट चाहिए। तो दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया कि तुम 6 महीने बाद जब भी तुम्हारे पास वीट आएगा किसान का, ये प्राइस पे वो इतने केजी डिलीवर करेगा। तो यहाँ पे दोनों रिस्क मैनेजमेंट के। व्हाई दिस डेरिवेटिव्स आर यूज? इट स्टार्टेड ओनली फॉर रिस्क मैनेजमेंट पर्पस, or nowadays different investor using for different purpose: hedging, someone is using for speculation purpose, someone using for arbitrage purpose. So different investors are using for different purpose, but basically it is made for risk management. तो कैसे इस केस में फॉरवर्ड का एग्रीमेंट किया, दो पार्टी एग्रीमेंट कर लिया, किसान और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलिस्ट, दोनों को रिस्क है। फार्मर को रिस्क है कि उसको प्राइस वो मिलेगा नहीं मिलेगा। सेकंड, इंडस्ट्रियलिस्ट को रिस्क है कि उसको उतने क्वांटिटी का वीट अच्छी क्वालिटी का मिलेगा नहीं मिलेगा। सो व्हेन बोथ आर एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट, both risks are managed. Options are the contract give the right of the holder option to buy, not the obligations. So when you are buying options, you have to pay only the premium. And when you are buying, you are the buyer of the option is known as holder. Buyer is known as holder, and seller is known as writer. Seller, writer, and buyer, holder. So please try to remember, buyer is also known as holder and seller is also known as writer. So a person who buy the call by paying a premium, they having a right but not the obligation. Means
either they want to settle this transaction on expiry date or not, they will lose only the premium. But the seller having obligation, if the buyer is exercising, then seller has to perform. सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बायर एक प्रीमियम देता है, सेलर प्रीमियम रिसीव करता है। यहाँ पे बायर को एक राइट मिलता है, तो एक्सपायरी डेट में वो एक्सरसाइज करना चाहे, अब एक्सरसाइज जब बायर को फायदा होगा तभी एक्सरसाइज करेगा। सेलर को क्या है कि एक्सरसाइज जैसे ही बायर करेगा सेलर को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सेलर के पास ऑप्शन नहीं है, बट बायर के पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है बायर को। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज मीन्स डेट इंस्ट्रूमेंट। सो under this, investor get a fixed income, that's why its name is fixed income. Commodities and commodity ETF. So commodities are like a gold, silver, copper, agriculture produce, etc. So commodities, electronic traded fund, exchange traded funds are there, like a gold ETF, commodity ETFs. We can able to buy the commodity through the stock exchange. So mutual fund ETFs are also available for retail investors. अगर आपको रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है बट फंड उतना बड़ा नहीं है, तो आप क्या करोगे, रीट्स में इन्वेस्ट करोगे। आपको कमोडिटी का फिजिकल डिलीवरी नहीं है, बट आप जाके स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ETF ले सकते हो, जिसमें आपको ये सारी कमोडिटीज आपको मिल सकते हैं। रियल एस्टेट इज द लार्जेस्ट असेट क्लास इन द वर्ल्ड। Their investment requirement is also very huge, and it is usually for long term. And here we can generate the income by way of rents. But you can invest in real estate investment trust. Small investment fund is required compared to the physical investment. You can buy the paper, the security you can invest, real estate investment trust. Then the mutual funds, we all are known that investment vehicle that pull together the funds collected from large number of investors and invest these funds in debt security and other asset class. And whatever the return they generate, the mutual fund company, they give to the, after deducting the charges, they pass on to the investors. ये क्या होता है कि स्मॉल इन्वेस्टर से, बहुत सारे इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट किया और फंड को इन्वेस्ट किया, और जो भी रिटर्न आया उसमें से चार्जेस डिडक्ट करके सारे इन्वेस्टर को पास ऑन कर दिए। ये क्या है, म्यूचुअल फंड का काम है। यहाँ पे AMC हमने पढ़ा इससे पहले, AMC फंड मैनेजमेंट का काम करती है। Actually, we are covering the syllabus in detail, so you can expect more than the 40 also. Now, second chapter we are starting. Can go through this MCQ, can practice now. Second chapter, this chapter, trade cycle. We have to study the trade cycle. What is the trading, clearing, settlement, and risk management of the stock exchange? So as we know that T+2 or T+1 is the settlement. So in the previous session हम लोगों ने देखा कि ट्रेड जब करते हैं हम लोग, तो सेटल कब होता है, या तो T+2 में होता है, या कुछ कुछ सिक्योरिटी के लिए आज T+1 में भी होता है। तो जैसे हम प्लेस करते हो हम लोग ऑर्डर, तो ब्रोकर की क्या जिम्मेवारी है कि वो चेक करे बायर के पास फंड है या नहीं है, और सेलर के पास सिक्योरिटीज है या नहीं है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द broker to check whether the buyer having a fund or not, or seller having a security or not. Please go through this. Broker system first check. Okay. Broker system first check.
whether the sufficient security is available with the client demat account, sufficient funds are for the buyer, sufficient funds are there or not, and secure and seller sufficient security. तो ब्रोकर क्या करेगा, सबसे पहले बायर अगर ऑर्डर दे रहा है तो उसको चेक करेगा उसके पास फंड है या नहीं, नहीं तो बाद में वो ऑप्शंस में जा सकता है अगर फंड दिया नहीं तो इससे अच्छा प्राइमरी चेक्स होगा। देन ऑर्डर मैचिंग करेगा और कन्वर्सन होगा। तो जैसे ही ब्रोकर ने सारा कंप्लायंस चेक कर लिया उसके बाद फिर वो ट्रेड देगा, और ट्रेड जैसे ही मैच हो गया, तो ट्रेड जैसे ही एक प्राइस दिया उस प्राइस पे मैच हो गया, या मार्केट ऑर्डर डाला तो मार्केट हम लोग दिखने वाले कितने टाइप के ऑर्डर रहते हैं, तो ब्रोकर का ऑर्डर जैसे ही मैच हो जाता है तो ट्रेड हो गया, अगर मैच नहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ऑर्डर इज नॉट मैच, if the matched then it is order is executed, if not matched then cancelled। ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, फर्स्ट एंटरिंग द ऑर्डर, देन if require order modification or order cancellations, so these are the facility available in order management। In the what are the components in order management, clients identities, for what client we are giving the order, what price given the client instructions, what price we are giving in the order, what time is also very important, because in the share market timing is plays very important role। तो टाइम को भी ध्यान में रखना है कि कौन से टाइम पे ऑर्डर दिया है बायर ने, और हम कौन से टाइम में प्लेस कर रहे हैं, क्या प्राइस में बायर ने इंस्ट्रक्शन दिया है, कितनी क्वांटिटीज ट्रेड करना है, क्या इक्विटी है, डेट का लिए बोला है, क्या व्हाट इज द सिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी इज लाइक इक्विटी और डेट, और व्हाट, whether to purchase, buy or sell, what action need to be done, what to buy and what to sell, whether it is equities, preference, debt, ETF, mutual fund, what। सो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है, क्लाइंट कौन से क्लाइंट ने किस प्राइस में कब दिया, कौन से टाइम में, कितनी क्वांटिटी, कौन सा सिक्योरिटीज बोला है और क्या बोला है, बाई करना है सेल करना है, और फिर उसके बाद इस ऑर्डर का ट्रेडिंग मेंबर ट्रेड करे देगा। और ये ऑर्डर जो है ना तीन कंडीशंस, थ्री कैटेगरीज में क्लासीफाई होगा, प्राइस रिलेटेड कंडीशंस, टाइम रिलेटेड कंडीशंस एंड क्वांटिटी रिलेटेड कंडीशंस। सो ट्राई टू मार्क्स इंपॉर्टेंट इस थ्री कैटेगरी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस, क्योंकि ट्रेड इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस मैच होगा तभी तो होगा, दूसरा टर्न से टाइम पे दिया है, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक थर्ड क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी आप कितने प्लेस कर रहे हो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर, व्हेन वी आर गिविंग द मार्केट, सो वट एवर इज द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट द ट्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड। जब हम लोग मार्केट ऑर्डर में ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि जो भी जैसे ऑर्डर में डाल दिया मार्केट ऑर्डर, तो जो प्राइस में ट्रेड हो रहा होगा उस टाइम पे वो ट्रेड शेयर्स ऑटोमेटिकली बाई कर रहे हैं तो बाई हो जाएगा, सेल कर रहे हैं तो सेल हो जाएगा। So without specifying any price, purchase or sell the security at the best market price available across the market depth to complete the order quantity. So up to this, you have to remember this slide. Limit order. In market order, we are just placing the order through the market. We are not giving any limit that this price we want to buy. Suppose we are fixing the price. We give the entry or exit price, then this is a limit order. When we are not fixing any price, we are giving mark through the market order. So whatever is the price prevailing in the market trade will be executed. That is a market order. And limit order, when we are fixing the price. लिमिट ऑर्डर में हम लोग प्राइस बताते हैं, मार्केट ऑर्डर में कोई प्राइस नहीं बताते हैं। जैसे ही ऑर्डर डालते हैं मार्केट ऑर्डर में, तो मार्केट ऑर्डर जैसे ही ऑप्शन पूछेगा आपको कि मार्केट या फिक्स प्राइस फिक्स करना है, तो प्राइस जैसे ही फिक्स करोगे उसका लिमिट, उसको लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। प्राइस नहीं फिक्स किया तो ऊपर में हमने पढ़ लिया है मार्केट ऑर्डर। थर्ड, स्टॉप लॉस। जैसे ही आप स्टॉप लॉस लगाते हो, इसके लिए आपको
लिमिट ऑर्डर के लिए आपको याद रखना है, व्हेन ट्रेडर सेट द एंट्री और एग्जिट प्राइस दे एंड देन एम टू बाय और बिलो मार्केट प्राइस और सेल और सो ये आपको यहाँ पे याद रखना। स्टॉप लॉस ऑर्डर, stop loss order, the type of order that allow trading member to place an order which get activated only when the market price। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस वर्ड याद रखना है। स्टॉप लॉस ये आप लगा देते हो जैसे ही, तो आपका स्टॉप लॉस इस प्राइस के नीचे जैसे ही होगा जाएगा, शेयर्स नीचे जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रेड हो जाएगा, तो आपका लॉस ज्यादा नहीं हो पाएगा। और जैसे ही आप, सो इसमें दो लिमिट लगाना होता है, एक अपर एंड लोअर। इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर, allow a trading member to buy or sell a security as soon as the order is released into the market। तो जैसे ही ऑर्डर रिलीज करते हैं तो या तो और ट्रेड हो जाएगा या तो कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे हमारा पैच यहाँ पे पार्शियल मैच पॉसिबल इज देयर, अगर जो शेयर्स का प्राइस हमारा मैच हो जाता है, अगर वो मार्केट में प्राइस चल रहा है तो ट्रेड हो जाएगा। पार्शियल मैच हो गया तो पार्शियल, जैसे 100 शेयर 500 शेयर दिया, 100 शेयर आगे और 400 नहीं आया क्योंकि उस प्राइस में मैच नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने अगर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग डाला हुआ है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेलर भी, अगर समझ लीजिए 100 शेयर का ऑर्डर दिया है, उसमें से 50 शेयर्स आपके ट्रेड हो गए, 50 नहीं हो पाए क्योंकि सेलर, आप बायर हो, सेलर जो है इस, वो 50 शेयर्स इस प्राइस में देने वाला एक डिफरेंट सेलर था, 50 शेयर्स डिफरेंट सेलर होगा। तो ये आपका मैच हो गया क्योंकि वो सस्ते में बेच रहा था और आपने जो कोट दिया था वो मैच हो गया। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरा सेलर ने ज्यादा प्राइस लगा के रखा है। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में क्या है कि डन थ्रू द प्राइस टाइम प्रायोरिटीज, प्राइस एंड टाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वांटिटीज। सो प्लीज ट्राई टू अंडरलाइन दिस, यू कैन रीड दिस, यू विल इजीली अंडरस्टैंड कैसे ये शेयर्स का प्राइस है। और मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा उसमें इसको कवर करेंगे। अगर आप इस लाइन को, इसको देख के अगर इतना भी पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। टाइम स्टैम्प ब्रोकर, दिस इज ऑल्सो, now this is a very important question. If more than one order arrive at the same price, they are arranged in a ascending time order। प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर, जैसे भी एक टाइम पे दो से ज्यादा ऑर्डर आएंगे सेम प्राइस के लिए तो असेंडिंग टाइम ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये आपको याद रख लेना। ऑर्डर मॉडिफिकेशन एंड कैंसिलेशन इज अलाउड ऑर्डर अंटिल ऑर्डर आर मैच। जब तक आपका ट्रेड कंप्लीट नहीं होता, कितने बार भी आप चाहो तो मॉडिफिकेशन कर सकते हो। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज योर रोल ऑफ clearing corporation of clearing corporations, their role is clearing and settlement and risk management। So whenever there is a trade, the trade will be settled on T+1 day or T+2 day basis, so it is the duty of clearing corporations to manage the risk। The role of custodian, we know that they are the safekeeping securities of institutional investors। Role of clearing corporation we have already studied. Under this, what you have to remember, clearing corporation is a counterparty। So whenever there is a any default, if there is any default, who will be held responsible? Clearing corporation being a counterparty। अगर suppose we are giving we are trading, I'm buying a shares and someone selling the shares, but seller don't having a securities, then there is a counterparty risk in this trade। But because
this the trading is done through the stock exchange, the counterparty risk to be bear by the clearing corporations. Please try to remember. जब भी कोई ट्रेड होता है दो पार्टीज के बीच में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क कौन बेयर करता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर इफ देयर इज अ डिफॉल्ट. First question. Second, there are three types of clearing corporation. Please try to remember these three types. And whenever there is a auctions, suppose seller के पास सिक्योरिटी नहीं है, उसने ट्रेड मार दिया, तो वो कौन बेयर करेगा जो भी पेनल्टीज आएंगे? सो ऑक्शंस आर पेनल्टीज आर लेविड ऑन सेलिंग ब्रोकर. तो उसका पेनल्टी किसके ऊपर आएगा? सेलिंग ब्रोकर के पास, जिसने सिक्योरिटी सेल किया. सो पेनल्टी विल बी लेविड ऑन सेलिंग ब्रोकर, and after that selling broker will take a try to recover from customers, because it is a fault of customers or it is a fault of broker. So it's depend upon, suppose the seller told some another security but the broker told some another. So similar type of name like Atul product and Atul limited. Seller told that sell Atul product, but the broker told Atul limited instead of Atul product. So in that event, the seller will itself bear. They cannot able to recover from buyer. If it is a mistake, of seller, they can able to recover from the seller. Or if it is not a mistake of seller, then the broker will bear. But for your exam purpose, you have to remember penalty levied on selling broker whenever there is a shortage of delivering by the selling broker. There are three types of clearing corporations, and if there is a default, clearing corporation being a counterparty. Second chapter done. Stock exchange, third chapter. Social stock exchange. Social stock exchange means, so stock exchange we know BSE, NSE. Social stock exchange means a separate segment of stock exchange having a nationwide terminal. Separate segment of stock exchange having a nationwide terminal. Separate segment of stock exchange having a nationwide terminal. So in BSE, there is a separate segment of social stock exchange. In NSE also separate segment of separate segment name is social stock exchange. तो BSE में भी आपको सोशल स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलेगा, NSE में भी देखने को मिलेगा. जैसे SME प्लेटफॉर्म में वैसे ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे सेपरेट सेगमेंट होगा हर एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर. इसको बोलेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज. तो सेबी ने यही डिफाइन किया है. सोशल स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट 2003 में आया था ब्राजील में. ये आपको कुछ कुछ ईयर्स याद कर लेने हैं. In our country, we are allowing both for-profit enterprises and non-profit enterprises. Social stock exchange मैंने जो बताया आपको, separate segment of recognized stock exchange having a nationwide terminal. सोशल स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन लिस्ट कर सकते हैं अपने सिक्योरिटीज? सोशल वो देखते हैं हम फोर्थ चैप्टर में. फर्स्ट यहाँ पे थर्ड चैप्टर नाउ हियर सोशल स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग नाउ डन. सोशल एंटरप्राइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस? सोशल एंटरप्राइजेस, social stock exchange is a platform which allow enterprises to be listed. Social enterprises, NPO and FPE. So FPE and NPOs, non-profit organization and for-profit enterprises, social enterprises. सोशल स्टॉक एक्सचेंज लाने का मकसद क्या? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? सो व्हेन सी टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ SDG, SDG का मिशन जो है हमें अचीव करना है 2030 तक. तो उसके लिए गरीबी को हटाना है, बेरोजगारी, एजुकेशन बढ़ाना है, बेरोजगारी कम करना है, इन्वायरमेंट अच्छा करना है, बहुत सारी चीजों को करना है. बट उसके लिए फंड कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट क्या इतना कर पाएगा? तो NGO
या फिर जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अगर कोई एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, कोई सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, तो उन सबको बोला गया कि आप फंड ले सकते हो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। आप अपनी सिक्योरिटी को सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करो और फंड लो, और आप इस मिशन को अचीव करो। तो इस सोशल एंटरप्राइजेस कौन कौन अपने फंड को रेज कर सकते हैं? सोशल एंटरप्राइजेस जो मैंने बताया, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रस्ट सोसाइटी है, एनजीओ है, या फिर जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और एजुकेशन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं, तो वो भी अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करके एसएमई प्लेटफॉर्म पे फंड रेज कर सकते हैं। एनपीओ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे फंड रेज कर सकते हैं। उनके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी है, वो हम चैप्टर 4 में देखेंगे। वी विल सी द व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट द एनपीओ कैन रेज द फंड, what are the instrument through the FPs can able to raise the fund, that we will see in the chapter 4. But now in this chapter, what is the meaning of social stock exchange, a separate segment of recognized stock exchange having a nationwide terminal, and what is the social enterprises, FP and NPOs. Stakeholder of social stock exchange, trading members like a broker, NP non-profit organizations is like a sex trust society, NGO, for-profit enterprises like a companies, LLPs, partnership firm, individuals, market infrastructure institutions like a depositories, clearing corporation and stock exchange, social auditors. So we will study in details in chapter number 5. But nowadays, now just I will tell you that social auditor means a person registered with the SRO. जो भी पर्सन रजिस्टर किया है एसआरओ से और एनआईएसएम का एग्जाम पास किया है और सर्टिफिकेट को मेंटेन किया है, उसको सोशल ऑडिटर बोलते हैं। ये सेबी ने डिफाइन किया है। इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी जो डेटा मेंटेन का करने का काम करेगा, जो भी एनजीओ का डेटा मेंटेन करेगा, उसको इंफॉर्मेशन। रेगुलेटर सेबी एंड इन्वेस्टर्स are retail investors, institutional investor. Institutional investors, there are two types: domestic financial institution and foreign portfolio investors. Trading members, we all know brokers, non-profit organizations, trust, Section 8 company trust societies, and for-profit enterprises, which include companies, sole proprietorship, HUF, these list. Okay. Okay, up to this. So see why we need a social stock exchange. There are 31 lakhs non-profit organizations are there. More than the double the number of school, 250 times the number of government hospitals. But see, even that these NGOs are not getting the proper fund. So when these NGO will not get the fund, how they can able to cope up with the mission of our SDG 2030? So जैसे ही इन एनजीओ को फंड नहीं मिलेगा, 31 लाख एनजीओ है बट इनको फंड नहीं मिल पा रहा है। What are the sources of getting the fund? So there are 4 sources of getting the fund, these NGOs: individual donations, contribution made from Foreign Contribution Act 2010, foreign contributions, CSR grants, and grant from government schemes. So these are the 4 sources. And you can see the data, these are very low. So that's why we need a social stock exchange where these NGOs are going to list their securities. They are going to list their securities and they can raise the fund. They can utilize the capital market, and once they will get the fund, then these NGO will work for our societies. For a social mission, for a social sustainable development goal, these social stock exchanges are required, and here the transparency will be more.
regulatory norms will be there. So companies who are getting the funds, where they are utilizing, proper checks and balance should be there. तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज आने से एनजीओ को फंडिंग इजीली मिलेगा, और दूसरा जो फंड एनजीओ रेज करेगा उसके ट्रांसपेरेंसी भी होगा, डिस्क्लोजर होगा। तो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक रिफॉर्म्स की तरह प्रैक्टिकली देखोगे तो आप एक एनजीओ ने आज के डेट में लॉन्च भी कर दिया है। रजिस्टर तो बीएससी में भी बहुत सारे एनजीओ रजिस्टर्ड हो गए, एनएससी में, बट ऑफर डॉक्यूमेंट्स अभी एक के ही हुए हैं। आईसीडीआर रेगुलेशंस, एज पर आईसीडीआर रेगुलेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैंने कहा था जो ट्रस्ट, ट्रस्ट दो टाइप के होते हैं, एक इंडियन ट्रस्ट एक्ट से रजिस्टर्ड और दूसरा जो कि स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है, सेपरेट स्टेट से, गुजरात एंड महाराष्ट्र। सो इन गुजरात एंड महाराष्ट्र दे हैविंग अ सेपरेट लॉ फॉर ट्रस्ट, एंड दिस इज अ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, एनी ट्रस्ट एंड चैरिटेबल society under Society Registration Act, and Section 8 company or any other entity may be specified. So as of now, no entity is specified by SEBI. So this is NPO. Please try to remember this. This is very important. For profit enterprises, SEBI already in the previous uh, page you have seen the what is the profit enterprises, companies, LLPs and all. But SEBI defined what profit means: any company or body corporate for profit, which is a social enterprise for the purpose of ICT regulation, but does not include Section 8 company. Section 8 company fall in NPOs. तो जो कंपनी है जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, चाहे एलएलपी हो, कंपनीज हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, कोई भी हो। सोशल ऑडिटर means a person registered with the SRO and or any other agency, either the SRO of ICI or any other SRO registered with the SEBI and maintaining the license. तो अगर एसआरओ से रजिस्टर्ड है, जो भी एसआरओ है, आईसीआई का एसआरओ, आईसीएमआई एसआरओ, आईसीएसआई एसआरओ, जो भी एसआरओ रजिस्टर्ड लाइसेंस दिया है एसआरओ को सेबी ने, उस एसआरओ से जो भी पर्सन एग्जाम पास करके रजिस्टर किया है और कंटिन्यूसली मेंटेन करता है सर्टिफिकेट, होल्डर वैल्यू सर्टिफिकेट बाय एनआईएसएम। सोशल ऑडिटर का जब आप एग्जाम पास कर लोगे उसके बाद आप रजिस्टर कर लोगे एसआरओ से, तो आप भी सोशल ऑडिटर बन जाओगे। सोशल ऑडिटर फॉर्म रिक्वायर अ मिनिमम ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 year एक्सपीरियंस और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये भी आपको याद रखना है। दिस इज फॉर वट एवर द इम्पोर्टेंट आई एम गिविंग यू, दैट इज you should remember, this is very important for your exam purpose. Information repository, already explained you, they are maintaining the database of NGOs. Regulator, so regulator is SEBI. SRO is a self-regulatory organization, full form of SRO, self-regulatory. So there are three SRO: ICSI SRO, ICMI SRO, and ICA SRO. ICA SRO name is Institute of Social Auditor of India. Governing Council of Social Stock Exchange. So every social stock exchange shall need to constitute a social stock exchange governing council. जो भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उसको एक गवर्निंग काउंसिल बनाना पड़ेगा। फुल फॉर्म ऑफ SGC, you have to remember, Social Stock Exchange Governing Council. Funding structure of NPOs, NFP. So they will raise the fund. Mostly they will get the fund through individual donations, CSR, government grants, and through the FCRA. Development impact bonds, then the social impact bond funds. So social impact funds are like alternative investment funds.
So financing instrument of NPO can raise the fund through issuing of zero coupon, zero principal, no coupon, no principal repayment. This is the instrument. So NPO जो भी है अपना ये इंस्ट्रूमेंट लाके सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करके फंड ले सकता है, या फिर सेकंड डोनेशन थ्रू द म्यूचुअल फंड स्कीम स्पेसिफाइड बाय सेबी और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइड बाय सेबी टाइप टू टाइप. So these are the instrument. A non-profit organization can list their security in social stock exchange and raise the fund. Zero coupon, zero principal. So no coupon, no principal payment will be there. Zero coupon, zero principal instrument through the public issue or through the social impact alternative investment, private placement, we can say social impact fund or public through issue. They can issue. What is the other conditions? Minimum issue size 1 CR, minimum application size 2 lakhs. This is for issuer and this is for investors. So minimum application size of investor is 2 lakh and minimum subscription 75% year. So if any issuer not receive minimum subscription, then they have to refund the money. So ये बड़ा ही important है, ये आपको याद रखना है, ये तीनों एग्जाम पर्पस के लिए. Social impact fund is like a alternative investment fund. So the name is here social impact funds. These are the condition for social impact funds. Please try to remember this percentage. You are important for exam. How the FPO can raise the fund? So we have seen the NPO can raise. NPO कैसे raise करेगा? Zero coupon, zero instrument या mutual fund SEBI notify किया या कोई भी instrument SEBI बता रहा है. FP can issue debt equity, debt ratio. Debt equity they can issue. So debt security they can issue and equity securities. Debt security they can list on main board or equity security they having option. Either they can list on main boards, SME platform or innovator growth platform. ये आपको याद रखना है. डेट सिक्योरिटी मेन बोर्ड पे रिलीज कर सकता है और इक्विटी जो है वो मेन बोर्ड पे भी, एसएमई प्लेटफॉर्म पे भी, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे भी. एफपी कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है? इक्विटी एंड डेट. डेट कहाँ पे? मेन बोर्ड पे. इक्विटी कहीं पे भी, मेन बोर्ड, एसएमई प्लेटफॉर्म और इनोवेटर ग्रोथ फॉर्म. क्या एफपी लिस्ट हो सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे? नहीं. सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे कौन लिस्ट हो सकता है? खाली एनपीओ. सोशल एंटरप्राइजेस जब इशू करेगा तो वो मेन बोर्ड, एसएमई प्लेटफॉर्म, इनोवेटर, इक्विटी शेयर्स. ये किसके लिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज. ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं वापस. So now in the second video, I will cover remaining chapters. If required, we will make a 3 video also because we are covering the syllabus in a detail.